outcome of the reaction. Okay, so with the help of that frontier molecular orbital approach. So we discussed that in detail, and then depending upon what is the how we are doing it, whether we are doing a connotation or disrotation. So that will decide, and the product outcome that will depends upon whether the product, the symmetry allowed transition is possible through either through connotation or through disrotations. Okay, and the other important point which we discussed is that the mirror plane symmetry is conserved during the disrotations. Okay, so when you do the disrotations, the mirror plane symmetry is conserved, and in the cone rotations, the C2 symmetry is conserved. Okay. So for example, in this case, so under first one is thermal condition. So this was the product. Okay, so this was the substrate, and then we have to identify what are the products. Okay, जो last time we discussed किया तो what are the products in these reactions, whether it is cis trans or cis. Okay, so under thermal conditions. Okay, so we are having thermal condition. So under thermal conditions, so we can also put it like this way. Okay, so we are having this one is CS3 and H. This one is CS3 and H. Okay. So under thermal condition, we know. So in this case, Psi3 will be the highest occupied molecular orbital. So it will be Psi3, the highest occupied molecular orbital, and the Psi3 will be having a mirror plane symmetry. Okay. उसमें mirror plane symmetry होगी, so दोनों के दोनों साइन पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पे. ठीक है, so this one. So now, okay. So now we can see this is having mirror plane symmetry. So in the mirror plane symmetry, the disrotation will result in the formation of a asymmetry along transitions. Okay, when the lobes, when the orbital with the similar symmetries, they are facing each other. Okay. So in this case, so you are having a product. The product will be possible only when you are doing a disrotations. Okay. So then you need to be careful with the position of the substituents. We are having a CS3 group here. So H is here. Then CS3 group is here inside, and H is here. Okay. And when you do the disrotation, okay, we do a disrotation to this bond. So what will happen? So with the disrotation, okay, so the lobes with similar symmetry, so they will be facing each other. Okay. So lobes which are having same symmetry, they will be facing each other. But then where the methyl group, where the substituents will go? Yes, my substituents here. So you are having a methyl group here in this plane, and when you rotate this, okay, इसको rotate करेगा जो vertical आपका group है, इसको rotate करोगे तो बड़ा group you are having horizontally here, CS3. This CS3 will move upward. वो ऊपर की तरफ move करेगा. ठीक है. So ये upward direction में move करेगा. So you are having CS3 here. So CS3 will be here and H will be here. Okay. And in this case, now in this case, you are doing again. So this is a disrotation. So disrotation कैसे होगा? This will move clockwise and this will move anti-clockwise. Okay. And you are having a methyl group here inside. So this methyl group will move downwards. जो अंदर की तरफ है वो downward जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा. Okay. So methyl group will be here. So this will be here and this will be H. Okay. So it means under thermal conditions, you are getting a trans product. ठीक है, आपके पास ये ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है. You got it? और क्या आप में से किसी ने किया है क्या? Yes sir. जैसा कि मैं बना, उसमें क्या बनेगा फोटोकेमिकल कंडीशन में? Cis product. Chemical condition में
हाँ सीस प्रोडक्ट बनेगा Cis क्योंकि product. कॉन्वर्टेशन होगा। या सो इट विल बी, ठीक है। सो वी कैन सी इट अगेन। सो ये आ गया यहाँ पे। नाउ इक्विलिब्रियम फोटोकेमिकल कंडीशंस। सो इन फोटोकेमिकल कंडीशंस the psi4 will be the highest occupied molecule orbital, ठीक है, highest occupied, and psi4, so psi4 is even, ठीक है। तो even केस में you are having a C2 symmetry। अगर C2 symmetry है तो ये आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो अगर आपने चेक करना है तो आप फिर से psi1 को ड्रॉ करो, psi2 को, psi3 को, psi4 को, and then you see, so one is having psi1 is having no node, psi2 is having one node, then psi3 two node, psi4 three nodes, ठीक है। then you have to see कि वो क्या symmetry आ रही है। otherwise this is the shortcut method, ठीक है। you know psi1 is having a mirror plane symmetry, so and C2 is asymmetric for psi1. Similarly for psi2, C2 is symmetric, mirror plane symmetry, mirror plane is asymmetric, okay। so there is a difference, so this difference, due to this difference, okay। so now in this case, so again you can see the substituents. So the substituents are, you're having CS3 here and H here, you're having a CS3 here and H here inside, okay। now if you do the disrotation, then this transition will be symmetry formator, okay। if you do the conrotation, so in the conrotations, so this transition it will be symmetry allowed, ठीक है। so conrotation में ये मिथाइल ग्रुप ऊपर करेगा और सिमिलरली दिस मिथाइल ग्रुप ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा और ये वाला भी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। so we are having a symmetry allowed transition, so symmetry allowed transition आएगी, but in this case what will happen, so both the CH3 group they will be above the plane or they will be having a cis alignments, okay। so there will be these will be in the cis cis positions, okay। so now you can see, so depending upon the reaction conditions, okay। so reaction conditions, whether you are doing a thermal, okay, or you are doing a photochemical reactions, okay। so those reaction conditions they are deciding the outcome of the product, which product you are going to get, okay। so one of the product you are getting exclusive formation, so these are the stereospecific reactions। Stereospecific reactions completely depends, for example it depends ये CH3 group है, so this CH3 group is, so this CH3 group is E with respect to this one is Z, so this arrangement is E and Z, so E और Z के केस में you are getting these two combinations of product, depending on the reaction conditions। Similarly अगर आपके पास if both are E दोनों E है और both are Z, ठीक है, then we will end up with different types of products, आपके पास अलग से प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। so this stereospecificity that will be completely controlled by the reaction conditions, ठीक है। और कौन से मोड में हमारे पास रिएक्शन हो रहा है that we have seen। if any of you having any questions on this one, otherwise we will proceed। so this is the Fermat approach and then we'll move on to the correlation diagram। इसमें अगर किसी को कोई डॉट है, अगर कोई क्वेश्चन है then you can ask। no questioning, okay, so then you can move on to the correlation diagram, okay। in macrocyclic reactions, then similarly we will do it the FMO approach in cyclodation reactions, okay। so then correlation diagram, so correlation diagram में भी, ठीक है, we are having some set of rules, ठीक है। so the symmetry of the orbital is conserved, symmetry of orbitals is conserved, ठीक है। so ये तो जो ऑर्बिटल की सिमेट्री जैसे पहले हुआ था, तो जो रिएक्टेंट की सिमेट्री है
और प्रोडक्ट की सिमेट्री है दैट विल बी कंजर्व, क्या वो रहेगी कि वो सिमेट्रिक है, ठीक है। दूसरा जो ठीक है, सो वी विल ड्रॉ द सिमेट्री एलिमेंट्स। हमारे पास दो सिमेट्री एलिमेंट्स, वन इज मिरर प्लेन सिमेट्री एंड अनदर वन इज C2 सिमेट्री, ठीक है। सो वी विल ड्रॉ these two symmetry elements and these symmetry elements they will decide, okay. So these symmetry elements of the reactant will be compared with the symmetry elements of the product, हम उनके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो the second point is first of all the symmetry of the orbitals that will be conserved means reactant का मिरर प्लेन सिमेट्री है, वो प्रोडक्ट का भी रहेगा, reactant का C2 है, वो प्रोडक्ट के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। So secondly, we draw the tables. We draw symmetry tables. So symmetry table for reactants and products. एक तरफ reactant के symmetry table हम draw करेंगे और एक तरफ product के symmetry table draw करेंगे, ठीक है। So what happens? Again then, so the symmetric orbits of the reactant, जो reactant के symmetric orbital है, symmetric orbital of the reactant, they will correlate with the symmetric orbital of the product. तो reactants के symmetric orbital product के symmetric orbital के साथ correlate करेंगे and anti-symmetric orbital of the reactant A on the reactant on small a से denote करें, anti-symmetric orbital reactant they will correlate with the anti-symmetric orbital of the product, ठीक है। तो इनके एंटीसिमेट्रिक प्रोडक्ट के एंटीसिमेट्रिक के साथ कोरिलेट करेंगे आपस में, वो अपने उनकी एनर्जी डायग्राम्स में कोरिलेट करवाना है, ठीक है। एंड देन फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूजंस, फ्रॉम these tables we can draw some conclusions, okay. And the conclusions are, if the orbitals of the ground state orbital of the reactant, okay. So we call it so if the ground state orbital of reactant, okay, they are correlating with the ground state orbital of the product. So ground state orbital of the प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट के ऑर्बिटल है, अगर वो प्रोडक्ट की ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल के साथ आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ ट्रांजिशन विल बी थर्मली अलाउड, इसको बोलेंगे थर्मली अलाउड एंड फोटोकेमिकली फॉरबिडन, फोटोकेमिकली फॉरबिडन है, ठीक है। ये समझ में आएगा आपको जब अभी हम ये कोरिलेशन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर इट। So ground state orbitals of the reactant, they should, and they are only correlating with the ground state orbital of the product, okay. So in that state we will call it that transition is a thermally allowed and photochemically forbidden, so that reaction will be thermally allowed, ठीक है, वो thermally allowed होगा, ठीक है। इसी तरह से the second one, ठीक है। So if the ground state of a reactant is correlating with the first excited state of product, okay. So the ground state of the reactant is correlating with the first excited state of the product, okay, or vice versa. Vice versa means the first excited state of the reactant, the first excited state of reactant, okay, if that one is correlating with the ground state of the product, the ground state of a product, okay, अगर उसके साथ correlate कर रहा है, okay. So in that case, so this transition will be photochemically allowed, so these reactions are photochemically allowed and थर्मली फॉरबिडन। तो ये जो ट्रांजिशन होगी वो फोटोकेमिकली होगी, फोटोकेमिकली अलाउड होगी और थर्मली फॉरबिडन होगी,
ठीक है, सो फोटोकेमिकली रॉड एंड थर्मली forbidden transitions. Okay, clear हो गया? So what we have to do? So first of all, we have to see. We discussed that the symmetry of the reactant will be transferring to the symmetry of the product. ठीक है, तो वो ट्रांसफर होगी symmetry आपस में दोनों की. ठीक है, और जो रिएक्टेंट की सिमेट्रिक ऑर्बिटल है वो प्रोडक्ट की सिमेट्रिक ऑर्बिटल के साथ कोरिलेट करेंगे, और जो रिएक्टेंट के असिमेट्रिक ऑर्बिटल है एंटी सिमेट्रिक वो प्रोडक्ट के असिमेट्रिक ऑर्बिटल के साथ कोरिलेट करेंगे. ठीक है, उनका कोरिलेशन वो देखेंगे हम लोग, और वहीं से देन वी विल ड्रॉ द कंक्लूजंस. तो जब वो कोरिलेशन डायग्राम बना दिया हमने, तो देन वी विल सी वेदर द ground state orbital of the reactant they are only correlating with the ground state orbital of the product. अगर वो सिर्फ correlation ground state तक limited है, so in that case, और जो excited state वाले हैं वो आपस में correlate कर रहे हैं, so in that case their transition will be thermally rod and photochemically forbidden. ठीक है, but अगर आपका जो ground state है reactant का वो product के first excited state के साथ correlate कर रहा है, या जो रिएक्टेंट का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो प्रोडक्ट के ग्राउंड स्टेट के साथ कोरिलेट कर रहा है, सो इन दैट केस दैट ट्रांजिशन विल बी फोटोकेमिकली अलाउड एंड थर्मली फॉरबिडन. ठीक है, नाउ सो वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ, वी स्टार्ट विद 4 pi electrons. So here we are having, so this is a 4 pi electron system, and we are getting a cyclobutene. Okay, so we are getting a cyclobutene here. Yeah. Okay. Now, अब इसके जो 4 orbitals है, we'll draw the 4 orbitals. ठीक है, reactant के भी इसके हमें पता है 4 orbital कौन कौन से हैं. So these are psi1, psi2, psi3 and psi4. So we are having psi1, psi1 में, so reactant में 1, 2, 3 and 4. So all are positive. Okay. Then psi2 के केस में 1, 2, 3, 4 plus minus. Then we are having psi3 केस में 1, 2, 3, 4 plus minus plus minus, and then psi4 1, 2, 3, 4 plus minus plus. Okay, these are psi1, psi2, psi3 and psi4. So these are the orbitals. ठीक है, इस केस में what we are having, so we are having this जो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, so new bond is this is sigma. ठीक है, इन दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, सिग्मा है, और इन दो कार्बन के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, दैट इज पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो रीअरेंज हो गए. ठीक है, so we will draw the symmetry elements of these. ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, with the head on overlapping. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल, so we are having plus minus. So we are having this overlapping. So this will result into the formation of a sigma bond. ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा. उसी तरह से then we are having a pi bond. Pi bond कैसे फॉर्म होगा, that will form by the sidewise overlapping of the orbitals. Okay, so we are having plus minus. So this is a pi orbital. ठीक है, जो नए बॉन्ड फॉर्म हुए. ठीक है, so similarly यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि these are the bonding orbitals. तो ये bonding orbital बन गए यहाँ पे. Then we are having anti-bonding orbitals. ठीक है, तो सिग्मा ज्यादा स्टेबल है, वो अनस्टेबल भी उतना ज्यादा होगा. तो जो सिग्मा का सिग्मा स्टार बनेगा वो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी उसकी. ठीक है, और पाई का इसका वैसे कम है, तो उसका सबसे पहले ये पाई स्टार आएगा. तो देन वी आर हैविंग ए पाई स्टार ऑर्बिटल.
So, so pi star is plus, minus, and minus plus. So in this case, so these opposite orbitals they are facing each other. Okay. So this we are not having any bonding here. So there is no pi bond formation. So this is pi star. We can call it pi star orbital. Okay. Similarly, we can have sigma star. So how sigma star will be formed? So this one. Okay. So when the lobes with opposite symmetry when face either. So यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा. So plus or minus. ठीक है. तो एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. तो ये प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को फेस करेगा. So this will be a sigma star orbital. So this will be sigma star orbital. ठीक है. So ये sigma star है. ठीक है. ठीक है. So हमने रिएक्टेंट का ऑर्बिटल भी देख लिया. तो psi1 psi2 psi3 psi4 और इधर प्रोडक्ट के ऑर्बिटल्स भी ड्रा कर लिए हमने. सो प्रोडक्ट में जो बन रहा है एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है, उसी का एक पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा. So we denote it these by stars. Okay. Now we have to see the symmetry elements. ठीक है. तो symmetry elements देखेंगे इसमें दोनों देख लेते हैं. एक मिरर प्लेन सिमेट्री भी और C2 सिमेट्री भी देख लेते हैं. ठीक है. देख लिया हमने. तो सबसे पहले मिरर प्लेन सिमेट्री psi1 में. तो इज इट सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक? psi1 नहीं था. psi1, what is the symmetry of psi1 with respect to mirror plane? Mirror plane, sir. सिमेट्रिक है कि नहीं? Mirror plane. सिमेट्रिक हाँ मिरर प्लेन की. सिमेट्रिक होगा कि एंटी सिमेट्रिक? Symmetry होगा sir. Symmetric. This will be symmetric with respect to mirror plane. ठीक है. Then psi2 विकांसा का तो विकांसा गौतम. विकांसा unmute yourself. नहीं है. ओके एब्सेंट लगी तुम्हारी. खुशी. Yes, sir. So psi2 Asymmetric mirror plane or symmetric C2. Yeah, so it will be asymmetric with zero. चलो अभी हम mirror plane देख रहे हैं. So asymmetric रहेगा. psi3 will be symmetric and psi4 will be asymmetric. ठीक है. तो ये हमने डिटेल में कर लिया. तो यही बोल रहा था मैं कि अगर आपको ये इनकी सिमेट्री एलिमेंट्स और ऑर्बिटल्स का ये आपको एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ करने आ जाते हैं, देन the rest thing will be जो theories है वो that will be easy for you people. So ये बन गया इसका. Then what about C2 symmetry? So C2, so psi1 with respect to C2. अर्पिता, psi1 with respect to C2 सिमेट्रिक होगा असिमेट्रिक होगा? अर्पिता रोशनी मेहरा क्या होगा? सिमेट्रिक असिमेट्रिक? आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा विद रिस्पेक्ट टू C2 सिमेट्रिक आ रहा है क्या? सिमेट्रिक कैसे आ गया ये psi1 विद रिस्पेक्ट टू? अगर इसको 180 का रोटेशन करेंगे तो सेम रह रहा है क्या? सोचो ना. No, sir, asymmetry होगा. हाँ तो आप सिमेट्रिक क्यों लिख रहे हो? Yes, हाँ. So this one is asymmetric. नहीं, psi2 sigma होगा सिर्फ. psi2 क्या होगा? psi2 में C2 होगा और sigma नहीं होगा. Yeah, so it will be symmetric, है ना? It will be symmetric. Then psi3 asymmetric, psi4 symmetric. ठीक है. तो ये आ गया हमारा रिएक्टेंट का. उसी तरह से let us find out the ये टेबल बना हुआ है. So let us find out the symmetry elements of सर बार-बार ऐसे निकालने से ये याद रख सकते हैं ऐसे psi1 psi2 psi3 एसिमेट्री. हाँ वही भी तो बोलो कि अगर आपको वैसे याद है तो और क्या चाहिए? वो तो पता है आपको. हमने बोला हुआ है कि जो psi1 में जो आपके इस केस में जो इवन आएंगे
तो इवन वाला आएंगे उनमें C2 सिमेट्री होगी, और जो ऑड वाले आएंगे psi1 psi3 psi5 आएंगे उनमें मिरर प्लेन सिमेट्री होगी। ठीक है, तो वो तो हमेशा रहेगा। तो यहाँ से ये सिर्फ कुछ लोगों को नहीं है तो उसको हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ये इट्स इजी। तो ये आ गया, ये सिमेट्री एलिमेंट्स आ गए। देन वी हैव टू फाइंड आउट द सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो या अब इस केस में, ठीक है, अब इस केस में ये जरूरी नहीं है कि एक सिमेट्री है दूसरी भी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन सिग्मा ऑर्बिटल, सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ग्रेड। सो वेदर इज इट हैविंग ए मिरर प्लेन सिमेट्री? सिमेट्रिक होगा एंटी सिमेट्रिक? यशोदासरी धारणी सिमेट्रिक सर। यशोदासरी इसमें बताइए आप, इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री है कि नहीं? दिख रहा है ना आपको? यस यस सर। तो इसमें बताइए है मिरर प्लेन सिमेट्री कि नहीं? सिमेट्रिक सर। सिमेट्रिक है कि नहीं है? आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है। बोलिए क्या हो गया? सिमेट्रिक सर। सिमेट्रिक है, ठीक है। सो इट विल बी सिमेट्रिक, यस। सो दिस वन विल बी सिमेट्रिक। देन गो टू द पाई स्टार, ठीक है। सो इन दिस कृष्णेंदु जो आपका पाई ऑर्बिटल है सर। कृष्णेंदु, तो ये इसमें मिरर प्लेन सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक? यस सर। यस मतलब सिमेट्रिक और असिमेट्रिक? सिमेट्रिक। So it will be symmetric, yes. Again it will be symmetric. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये सिमेट्रिक है दूसरा हमेशा असिमेट्रिक है। ठीक है, so ये भी सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, then with respect to we are discussing with respect to mirror plane only. Then pi star में इसमें है mirror plane symmetry? मिलिंद कुमार सिंह, Milind, can you hear me? Milind, unmute yourself. तुम्हारी वेबसाइट लगी। मोहम्मद मकसूद, so what about pi star? Is it symmetric or asymmetric? Yes, sir. So what about pi star? Is it a mirror plane symmetric or asymmetric? Asymmetric, sir. Asymmetric. Okay, so this one is asymmetric. And sigma star? Symmetric. Symmetric है? Asymmetric, sir. Asymmetric. Asymmetric. Okay. So yes. Okay. So again, so it is simple. The principle remains same. जो हमने स्टूडियो केमिस्ट्री में भी किया था, बाकी भी पहले बताया था कि आप एक वर्चुअल प्लेन ड्रॉ करोगे, उसके विद रिस्पेक्ट अगर आप उसको बाइसेक्ट कर रहे हो, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, then that is having mirror plane symmetry, or first half is the mirror image of the second half, then that is having mirror plane symmetry, otherwise it's asymmetry. ठीक है, so done, well done. So then what about C2 के केस में? So C2 first one. So is it symmetric or asymmetric? Follow me goes. Sir, asymmetric. So this one is asymmetric with respect to C2. Are you sure? Sir, not sure. इसको देखो, तो नॉट श्योर नहीं है तो उसको देखो, रोटेट करके देखो, इसको C2 को 180 से रोटेट करके देखो। अगर 180 से रोटेट करके क्या सेम रह रहा है कि चेंज हो रहा है? ठीक है, लीजा दत्ता। Yes sir, asymmetric होगा। asymmetric है, चेंज हो जा रहा है। लीजा दत्ता। Symmetric. लीजा दत्ता, तुम भी सो रही हो? रितिका,
Yes, sir. तो ये जो सिग्मा है, सिग्मा what is with respect to C2, is it symmetric or asymmetric? Sir, asymmetric. Asymmetric है. Yes. Sir, symmetric. अभी फिर से सोच लो. Symmetric है. Symmetric, sir. Symmetric है. Yes. रिया. Yes, sir. क्या ये Symmetric है sir. ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए. इस क्वेश्चन का आंसर सभी का ठीक होना चाहिए. सो दिस वन इज सर symmetric. एसिमेट्रिक होगा C2 से. asymmetric होगा कैसे? C2 तो नहीं होगा सर. कैसे? सर मतलब सिग्मा तो है, मतलब मिरर प्लेन तो है. जो आप ऑपरेशन लगाओगे, ठीक है, आपने ये रखा मिरर प्लेन, यहाँ पे रखा तो मिरर प्लेन आ गया. अगेन उस दिन भी जब मैंने मिरर प्लेन और C2 सिमेट्रिक बताया था कि जो मिरर होगा जनरली, जैसे जो मिरर प्लेन है सिमेट्रिक है वो C2 असिमेट्रिक होगा. तो ये कुछ केसेस में एप्लीकेबल है, लेकिन ये इट्स नॉट ये यूनिवर्सल ट्रूथ. ये कोई रूल नहीं है कि अगर इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री है तो C2 सिमेट्री नहीं होगी. ठीक है, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. ठीक है, तो यहाँ पे आपने वर्टिकल आपने C2 एक्सिस रखी हुई है, तो इसको अगर आप रोटेट करोगे 180 डिग्री से रोटेट करोगे इसको 180 डिग्री से, तो जो पॉजिटिव लोग है पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव पे चला जाएगा. ठीक है, सो सर इसको वर्टिकल प्लेन में करेंगे और लेफ्ट साइड को मतलब उसको मतलब प्लेन में करेंगे ना, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन. मतलब लेफ्ट साइड में जो psi1 psi2 psi3 लिखे हैं लेफ्ट में, ये वाला लोब्स बना है. हाँ, तो वो psi1 psi2 psi3 तो वो परपेंडिकुलर प्लेन में कर रहे हैं ना, जैसे ये वाला है, ये वाला, तो इसको रोटेट कर रहे हैं ये वाला. ठीक है, सो अगेन और इसको वर्टिकली. हां, सो दिस वन इज अगेन, सो व्हेन यू रोटेट इट, तो ये यहां पे आ रहा है, ये लोब्स बने हुए आपके. तो जब आप इसको ये परपेंडिकुलर वर्टिकली आ रहा है, तो जब आप इसको रोटेट करोगे, ये दो लोब्स हैं, तो ये दो लोब्स को आप रोटेट करोगे. ठीक है, ये तो अगर विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, सो दिस वन इज द, सो लेट अस सपोज दीस आर द लोब्स, ये लोब्स हैं आपके, तो ये C2 एक्सिस आपकी, तो दिस वन इज द C2 एक्सिस, ये वाला. ठीक है, और जब इसको रोटेट करोगे आप विद रोटेशन यू आर गेटिंग दिस वन. सो व्हाट इज हैपनिंग, तो ये वाला जो लीड है वो उसकी जगह चला जाएगा, पॉजिटिव पोल उसकी जगह चला जाएगा अगर दोनों ब्लैक है, और ये नेगेटिव वाला दूसरी तरफ चला जाएगा, दूसरे वो पे. ठीक है, सो दीस विल बी एग्जैक्टली ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर. तो ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे. ठीक है, सो दिस विल बी सिमेट्रिक. ठीक है, सिमिलरली दिस वन, नाउ इन दिस केस, so is it having C2 symmetry or not? जो पाई है, पाई में होगी सिमेट्री की नहीं? C2 नहीं होगी इसमें पाई में. पुनीत कुमार नहीं होगा सर इसमें. असिमेट्रिक पाई के केस में जब आप अगेन वर्टिकल प्लेन लगाओगे, जब इसको रोटेट करोगे नेगेटिव ऊपर आ जाएगा और पॉजिटिव नीचे चला जाएगा 180 डिग्री का रोटेशन करोगे. ठीक है, तो इस केस में दिस विल बी असिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2, तो ये असिमेट्रिक आएगा. देन थर्ड वन पाई स्टार. व्हाट अबाउट पाई स्टार? अगर हम यहाँ पे C2 ऑपरेशन लगा रहे हैं, सिमेट्रिक सिमेट्रिक ये आपको देखना पड़ेगा. सिमेट्रिक इसमें भी जब आप ये लोब्स है, तो जब आप उसको रोटेट करोगे तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला वापस यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, और उसी तरह से जो नेगेटिव वाला है वो नेगेटिव के ऊपर ओवरलैप करेगा. ठीक है, सो दिस विल बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2 एंड द सिग्मा स्टार एसिमेट्रिक. So sigma star की केस में it will be asymmetric, ये asymmetric रहेगा. ठीक है, so now ये हमारा काम पूरा हो गया. ठीक है, so these are the
हमने कोरिलेशन डायग्राम के लिए ये टेबल बना लिया, टेबल प्लॉट कर लिया, ठीक है। और अब हम चेक करेंगे इसको कि जो रिएक्शंस है, रिएक्शन कौन सी कंडीशन में होगा, ठीक है। सो ठीक है, सो नाउ अब जब हमने एफएमओ अप्रोच से किया, एफएमओ अप्रोच से हम क्या कर रहे थे कि वी वर अप्लाइंग द ऑपरेशंस, हम कॉन रोटेशन और डिस रोटेशन अप्लाई कर रहे थे, एंड देन वी विल सी कि वेदर इट इज ए सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन, सिमेट्री अलाउड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने थर्मल कंडीशन में किया कि हमने थर्मल कंडीशन कर ली फिक्स, फिर हमने उस पे एक कॉन रोटेशन भी लगाया और डिस रोटेशन भी लगाया, एंड देन वी चेक कि कहां पे सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन आ रही है, ठीक है। इस केस में वहां पे हमने रिएक्शन कंडीशन फिक्स की थी, इस केस में वी विल फिक्स द ऑपरेशन, ठीक है। हम देखेंगे कि हमने जैसे वी स्टार्ट विद कॉन रोटेशन, ठीक है, द ऑपरेशन इज कॉन रोटेशन, ठीक है। कि हम कॉन रोटेशन लगा रहे हैं, कॉन रोटेशन ऑपरेशन। तो कॉन रोटेशन में वेदर वी आर गेटिंग प्रोडक्ट अंडर थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशंस, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे अब, ठीक है। सो वी विल कंपेयर दैट। नो, कॉन रोटेशन में कौन सी सिमेट्री कंजर्व होती है? रानी था C2 सर। C2 सिमेट्री, ठीक है। सो कॉन रोटेशन इट कंजर्व C2 सिमेट्री, ठीक है। सो वी विल कंपेयर ओनली द C2 सिमेट्री एलिमेंट्स। सो वी आर having psi1, we are having psi2, then psi3, psi4, ठीक है। These are the reactants, and in the products we are having sigma, then we are having pi, then pi star and sigma star. These are the orbitals, okay. And okay, so symmetry elements, so we will compare only the C2 symmetry, हम ये वाली symmetry compare करेंगे, C2 symmetry, okay. So psi1 is, you know that psi1 is asymmetric, psi2 is symmetric, psi3 is asymmetric, psi4 is symmetric, okay. तो ये आ गए symmetry elements, ठीक है। फर्दर देखते हैं प्रोडक्ट के केस में C2 symmetry, so this one is the C2 symmetry. So sigma is symmetric, pi is asymmetric, pi star is symmetric, and sigma is asymmetric, okay. So symmetric, asymmetric, symmetric, asymmetric, okay. So these are the symmetry elements for the products, okay. Now we will compare the symmetry of the ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, ठीक है। जैसे psi1 का कंपैरिजन हम सिग्मा के साथ करेगा, psi2 का पाई के साथ करेगा, इनका कंपैरिजन, या तो उन ऑर्बिटल के साथ, अगर उनके साथ कोरिलेट नहीं कर रहा है, देन द नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल, नेक्स्ट हायर इन एनर्जी, ठीक है। तो ये सिर्फ आपस में कोरिलेट करेंगे, सिर्फ ऑर्बिटल से, ठीक है। इनकी जो कोरिलेशन आएगी, या तो सिमिलर एनर्जी वाले के साथ कोरिलेट करेंगे, या जो नेक्स्ट हायर में देखना है उसमें कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में नाउ विल सी psi1, psi2, psi3, psi4, ठीक है। अगेन वी आल्सो नो दैट दिस psi1 and psi2 they are the ground state orbitals, psi3 and psi4 are the anti-bonding orbitals, anti-bonding। तो इसी तरह से ये sigma pi they are the bonding orbitals, pi star and sigma star are anti-bonding orbitals, ठीक है। तो ये ground state में और excited state orbitals है, ठीक है। now so we see psi1 और sigma का जब कोरिलेट करेंगे, so the point is जो हमने डिस्कस किया था correlation diagram में, that the only symmetric orbitals will correlate with the symmetric orbital और asymmetric orbital will correlate with the asymmetric orbital। तो यहाँ पे ये asymmetric है, तो ये वाला सिमेट्रिक है, इसके साथ कोरिलेट नहीं करेगा, ये नेक्स्ट हायर में कोरिलेट करेगा। सो psi1 विल कोरिलेट विद द pi ऑर्बिटल, उसके साथ कोरिलेट करेगा, एंड सिग्मा इज सिमेट्रिक एंड psi2 इज सिमेट्रिक, so these will correlate with each other, इनका कोरिलेशन बन रहा है, ठीक है। सेकंड अगेन psi3, so psi3 is asymmetric and pi star is symmetric, तो उसके साथ कोरिलेट नहीं करेगा, ये कोरिलेट करेगा जाके psi3 will correlate with the pi star, ठीक है। and pi star
will correlate with the psi 4. Okay, so psi 3 will correlate with the sigma star and pi star will correlate with the psi 4. Okay, so these are the correlations between the orbitals of the reactants and the products. Okay, now from here we will draw the conclusions. Okay, so what is happening here if we see, तो ये हमें पता है कि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉडी में और बॉडी में. तो psi 1 will be having 2 electron, so psi 1 is having 2 electron and psi 2 is again having 2 electrons. Okay, so psi 1 and psi 2 they are correlating with the sigma and pi. Okay, so these orbitals they are correlating with the sigma and pi. Okay, so if you see carefully, so these psi 1 and psi 2 these are the ground state orbitals of the reactant, and sigma and pi they are the ground state orbitals of the product. Okay, so जो यहाँ पे correlation बन रहा है, so the ground state orbital of the reactant they are correlating with the ground state orbital of the products. ठीक है, तो जब सिर्फ ground state आपस में correlate कर रही है, ठीक है, तो उस केस में so जो ट्रांजिशन होगी तो ये थर्मली अलाउड होगी और फोटोकेमिकली अलाउड. तो शान मोहम्मद कैन यू हियर मी? सुबियन सरकार. Thermally. So it will be, ठीक है, वही हमने डिस्कस किया. So this transition will be a thermally allowed transition. So this is thermally allowed and photochemically forbidden. ठीक है, so thermally allowed and photochemically forbidden. ठीक है, अब ये टेबल मैंने कल बनाया था फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अप्रोच से जब हमने देखा. ठीक है, so we are taking a 4 and pi electron system. 4 and pi electron system है. ठीक है, and the operation applied is हम कौन रोटेशन कर रहे हैं. so 4 and pi में कौन रोटेशन किया हमने. ठीक है, कौन रोटेशन कर रहे हैं, so कौन रोटेशन will be thermally allowed. तो यहाँ पे आ रहा है कि it will be thermally allowed and photochemically forbidden. okay, so it doesn't matter हम चाहे FMO अप्रोच से कर रहे हैं या कोरिलेशन डायग्राम से कर रहे हैं, we are getting the same results. कि अगर आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उस केस में थर्मल कंडीशन में जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा वो that will possible only through cone rotation. ठीक है, या हम cone rotation कर रहे हैं तो cone rotation will be thermally allowed only and photochemically forbidden. ठीक है, got it? So ये तो आ गया आपका when you did the cone rotations. And what when you are doing a हेलो सर. सर ये psi 1 स्क्वायर psi 2 स्क्वायर ये कैसे लिख दिया आपने? तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो this is pi 2 स्क्वायर. okay, so basically ये these are the electrons. ठीक है, आपके पास जो psi 1 psi 2 है ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं. तो 2 इलेक्ट्रॉन psi 1 में जाएंगे, 2 psi 2 में जाएंगे क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में ही है अभी. अब आपको वो उसका पता चलेगा जब हम एक्साइटेड का अगले वाला कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2 में और पाई 2 में, ये दो ग्राउंड स्टेट के आपस में ग्राउंड स्टेट में रह रहे हैं. ठीक है, तो ये है और इनके बीच में कोरिलेशन बन रहा है. तो सिंस द ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल दे आर कोरिलेटिंग विद द ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल ऑफ द प्रोडक्ट. So this is a thermally allowed transition. Second one is let's suppose we are doing disrotation. अगर हम disrotation करते हैं तो disrotation के केस में the mirror plane symmetry element is conserved. तो वो mirror plane symmetry conserve होती है उसमें. ठीक है, तो ये mirror plane आएगा. So mirror plane के केस में again we will again draw correlation diagram. So this is psi 1, psi 2, psi 3 and psi 4. Okay, and here we are having sigma, pi, then pi star and sigma star. ठीक है, ये ऑर्बिटल है. और अब मिरर प्लेन सिमेट्री है, ये मिरर प्लेन सिमेट्री इनकी
So this one is symmetric, asymmetric, symmetric and asymmetric. Okay. और product में if you see mirror plane में, so this one is symmetric, this one is pi symmetric, pi star is asymmetric and sigma star is asymmetric. Okay. So these are the symmetry elements. और अगर आपने सिर्फ इसके लिए draw करना है, so these are the ground state orbitals और these are the excited state orbitals. ठीक है, ये draw कर लिया आपने. Now we start comparing. अब आप जब ये मैच कर लिया आपने, तो सबसे पहले psi1 और sigma की symmetry elements compare करो. Both of them they are symmetric, so they will correlate with each other. So psi1 will correlate with sigma. Okay, then psi2. Psi2 के केस में, so this one is asymmetric and pi is symmetric. So what happen? It will go and correlate with the next higher in energy. Okay. So psi2 will correlate with the pi star. Okay. Similarly, so this pi is symmetric. It will not correlate with psi2. So it will correlate with the psi3, which is symmetric. So इसके symmetry इसके साथ correlate कर रहा है. And psi4 and sigma star, they are symmetric, so they will correlate with each other. Okay. So now what is happening here? So this is a this rotation operation. So this rotation में क्या हो रहा है कि आप ऑर्बिटल देखो psi1 sigma के साथ कोरिलेट कर रहा है. psi2 is the ground state of the reactant. Ground state of the reactant is correlating with the first excited state of the product pi star के साथ. ये first excited state of product थी. And the ground state of the product pi is correlating with the first excited state of the reactant. Okay. So what we can say that this psi1 is having 2 electrons, then psi2. So psi2 is correlating with the first excited state. So here it has given 1 electron to this pi star. Okay. So psi1, psi2 and psi3. So this one is psi3. Psi1, psi2 and psi3. So they are having 1 electron. They are correlating with the sigma, pi and pi star. So 2, 1 and 1. Okay, orbitals. Electron नहीं लिखने कोई बात नहीं. Okay. So these 3 orbitals, psi1, psi2 and psi3, they are correlating with the sigma, pi and pi star of the reactant. Okay. So psi1, psi2, psi3 correlating with sigma 2, pi and pi star. Okay. So we can say that the first excited state of the reactant is correlating with the ground state of the product, and ground state of the reactant is correlating with the first excited state of the product. Okay. So it means this transition will be a photochemically allowed. So this is a photochemically allowed and symmetry forbidden. Okay. तो ये photochemically allowed होगी और symmetry forbidden. ठीक है. और यहाँ पे चले जाओ आप इससे 4 and pi का. तो 4 and pi के केस में you have it. So this rotation will be photochemically allowed. ठीक है. ये photochemically allowed हो जाएगा. ठीक है. And thermally forbidden. Okay. Got it? इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन अभी तो बताओ. ठीक है. ये सिर्फ थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे ड्रॉ करनी है ये डायग्राम्स. तो वो बता दिया आपको, क्योंकि सिग्मा जो ऑर्बिटल है, सिग्मा और पाई बॉन्ड में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? सिग्मा बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड विल बी लोएस्ट इन एनर्जी. जब लोएस्ट इन एनर्जी आएगा तो उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी, उतना एनर्जी क्या पाया जाता है? बॉन्डिंग जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल उतना ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक है. तो ये दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा? सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच में. ठीक है. उसी तरह से पाई में कम डिफरेंस है, पाई स्टार में भी कम डिफरेंस है. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी ऑर्बिटल आगे, और psi1 psi2 psi3 तो आप लोग करेंगे इतने ये हो जाता है. अभी और 4 बजे है तो नहीं कुछ और किसी का?
अभी फ्री हो ना आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि इसी में हम 4n पावर प्लस 2 दूसरा एग्जांपल भी कर लेते हैं फटाफट, इसको निपटाते हैं। सुन रहे हो क्या? नहीं? यशु यशु गुप्ता, हेलो, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। यस सर। मैं ड्राई दिया, मैंने कहा मैं अकेला पढ़ाया जा रहा हूँ। हाँ तो अभी अभी कोई क्लास करनी है ना 4 बजे कोई? नहीं सर। रोते रोते मूड में बोल रहे हो तो ये पुराने लेक्चर मिसिंग को भी मिस से वो भी पूरे करने हैं। तो और ऊपर से अभी सिलेबस बचता भी है तो उसको खत्म कर लेते हैं। तो इसमें साथ साथ में, क्योंकि वो साथ में समझ आ जाएगा आपको, तो जो हमने 4n pi इलेक्ट्रॉन के लिए सिस्टम के लिए किया, सो लेट अस डू इट फॉर दिस वन इज 4n plus 2, so 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन, ये वाला। तो इस केस में अभी अगर आप देखोगे, सो वी आर हैविंग 3, तो 3 पाई बॉन्ड है, सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और हियर क्या हो रहा है? रीअरेंज होके, सो वी आर गेटिंग ए सिग्मा, ठीक है। तो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा बनेगा 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो अगर सिग्मा बन रहा है तो एक सिग्मा का एंटीबॉन्डिंग बनेगा सिग्मा स्टार, और 2 पाई बनेंगे तो दोनों पाई के एंटीबॉन्डिंग बनेंगे पाई स्टार। तो सिग्मा 3 स्टार। तो सबसे पहले जो ये ऑर्बिटल डायग्राम है, सो फॉर psi1 psi2 psi3 कितने ऑर्बिटल आएंगे इसमें? psi6, ठीक है। सो वी आर हैविंग 6 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसमें 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। सो ये बताइए आपको कि सबसे पहले पॉजिटिव, सो दिस वन इज पॉजिटिव नेगेटिव, देन पॉजिटिव 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 नेगेटिव। में ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ ये देख रहे हैं, सो पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो आ गए आपके रेक्टेंट्स के ऑर्बिटल्स। तो ये सभी को हमने ड्रॉ किए हैं, बार बार ड्रॉ किए हैं। इनके अगर सिमेट्री एलिमेंट्स ड्रॉ करने हैं वो भी आ जाएंगे m and c2। तो मेरे प्लेन में दिस वन इज सिमेट्रिक, It's 4 o'clock. सिमेट्रिक असिमेट्रिक सिमेट्रिक असिमेट्रिक, ठीक है। उसी तरह से c2 देखेंगे, सो दिस विल बी सिमेट्रिक असिमेट्रिक सिमेट्रिक असिमेट्रिक सिमेट्रिक असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये तो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, ठीक है, ये बनाया हमने। तो इट्स डन। सो नाउ लेट अस मूव टू द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के ऑर्बिटल्स बनेंगे, सो सबसे पहले हमारे पास बनेगा सिग्मा, ठीक है। सो सिग्मा ऑर्बिटल which will be lowest in energy। तो ये सिग्मा ऑर्बिटल बनाने के लिए तो वी आर हैविंग दिस अरेंजमेंट, ठीक है। तो दिस इज प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सो दिस देन वी आर हैविंग 2 पाई ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग बनेंगे। सो फर्स्ट पाई वी कॉल इट पाई 1। सो पाई 1 विल बी, ठीक है। तो इस केस में 1 2 3 4, तो इसमें भी सारे के सारे 4 ऑर्बिटल्स, इसमें सेम सिमेट्री आएगी सभी, जो लोएस्ट बनेगा। सो पाई, सो दिस वन इज पाई 1। पाई 2 में क्या होगा? एक नोड आ जाएगा, तो वी आर हैविंग पाई 2 एंड पाई 2 इज हैविंग 1 नोड, एक नोड आएगा। सो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव। सो वी आर हैविंग अ नोड हियर, ये नोड बनेगा पाई 2,
तो ये तो बन गया हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एक सिग्मा बना और दो पाई, pi 1 pi 2. So these are the bonding orbitals. Then the anti-bonding orbitals. So this one is pi 3. So pi 3 star. तो anti-bonding को हम स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So in this case pi 3 में we are having two nodes. तो दो nodes बनाने pi 3 में. So plus minus minus plus. ठीक है. So we are having two nodes here. pi 3 star में. And pi 4 star में, pi 4 star we are having three nodes. तो ये भी कोई मुश्किल नहीं ड्रॉ करना, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो प्लस माइनस, ठीक है. देन हियर वी आर हैविंग थ्री नोड्स, ठीक है. तो ये आगे पाई, उसके बाद सिग्मा बॉन्डिंग है, सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग बनेगा. So then we are having last sigma anti-bonding. So here the anti-bonding बनेगा प्लस होगा और ये माइनस, ठीक है. So this is sigma anti-bonding, ठीक है. तो ये तो आपको बता दे जो रिएक्टेंट के ऑर्बिटल्स है psi 1 psi 2 to up to psi 6. प्रोडक्ट में जब बनेंगे तो सबसे पहले आ गया आपके पास सिग्मा बॉन्डिंग है और सबसे लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, ठीक है. बाकी जो पाई ऑर्बिटल बनेंगे, पाई ऑर्बिटल भी जैसे आप psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 बनाते हैं, उसी तरह से जो पाई 1 बनेगा उसमें कोई नोड नहीं होगा, पाई 2 में एक नोड आएगा, पाई 3 में दो नोड आएंगे और पाई 4 में तीन नोड होंगे, ठीक है. सो देन यू आर हैविंग दिस पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट व्हाट इज to see ये रेक्टेंट की सिमेट्री तो लगी है, मैं पता सिमेट्री एलिमेंट्स मैं प्रोडक्ट की. लेट अस सपोज दे आर स्टार्टिंग विद मिरर प्लेन. तो मिरर प्लेन में फर्स्ट वन में सिग्मा. तो समिता पटेल, जो सिग्मा है इज इट हैविंग मिरर प्लेन सिमेट्री और नॉट? समिता पटेल. Hello, sir. Hello, sir. Sir, please repeat the product part once more. Product part once more. Please repeat, sir. ये वाला. हाँ सर. हाँ हाँ सर. मैं ये देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, सो वी आर हैविंग these three pi bonds. ये तीन pi bonds है रेक्टेंट में, ठीक है. Now these three pi bonds they are rearranging and they are forming one sigma bond. ये यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इन दो कार्बन के बीच में, कार्बन नंबर 1 और 2. सो 1 और 2 के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है. तो यहाँ पे जो 1 सॉरी इसको 1 और 2 बोलते हैं, 1 और 2 बोलने के बाद इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6. लेट अस से 1 और 6. तो 1 और 6 के बीच में भी हैविंग दिस वन सिग्मा बॉन्ड. ये नया सिग्मा बॉन्ड बना हमारे पास प्रोडक्ट में. तो हम उस ऑर्बिटल को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे. And because sigma bond is more stable as compared to the pi bond, तो वो lowest in energy आएगा सबसे नीचे. यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है. Then second, so there was no pi bond between carbon number 2 and 3. यहाँ पे 2 और 3 के बीच में, so this is 1 and 6. 2 और 3 के बीच में आपका नया pi bond बना है. So 2 और 3 के बीच में एक pi bond बना है और 4 और 5 के बीच में एक दूसरा pi bond बना. 4 और 5 के बीच में एक दूसरा पाई 1 और पाई 2, दो पाई बॉन्ड बने. तो रिएक्टेंट से, ठीक है, जो रिएक्टेंट थे आपके पास उसमें जो 3 पाई बॉन्ड थे वो रीअरेंज होके बट दे फॉर्म 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड बने. एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर दीस 2 पाई बॉन्ड्स, एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को, ठीक है. तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए तो डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्रीज ऑफ द ऑर्बिटल्स, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है सिमेट्रीज में, ठीक है. So that सिग्मा का तो आ गया जैसे हमने 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में किया, इसमें सिग्मा बॉन्ड बन गया, हेड और कोलिजन है. सो हेड और आपस में ओवरलैपिंग है और सेम सिमेट्री है, ये बन गया. पाई 1 में क्या होगा, ऑल द ऑर्बिटल्स कार्बन नंबर 2 3 4 और 5 के बीच में है सारे ऑर्बिटल, ये जो पाई ऑर्बिटल है उसी के बीच में हमने ये लोब्स बना दिए पाई ऑर्बिटल. सो पाई 1 में ऑल द ऑर्बिटल्स दे आर हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है. सो सभी का सेम सिमेट्री है, तो ये बन गया.
पाई 2 में देयर इज वन लोब है, सॉरी वन नोड है, तो ये आ जाएगा वन नोड, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस देगा। पाई 3 स्टार में दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो इन दोनों के बीच में ये प्लस है, ये माइनस है, इस तरह से ये माइनस और प्लस है, तो दिस इज पाई 3 स्टार ऑर्बिटल है, ठीक है। तो दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। पाई 4 में वी आर हैविंग 3 नोड्स, तो हर एक कार्बन के बीच में जो चार पाई ऑर्बिटल दिखा रहे हैं हम लोग, इनके बीच में एक नोड आएगा, प्लस माइनस, ठीक है। और लास्ट में जो सिग्मा बन रहा है, सिग्मा ऑर्बिटल, ठीक है। तो सिग्मा ऑर्बिटल दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसका प्लस और माइनस है, ये अपोजिट आ रहा है, सो प्लस और माइनस, तो दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो व्हाट इज डिफिकल्ट इन दिस वन, क्या कहां पे पता नहीं चल रहा है, बट यू नो यू गॉट इट? हाँ यस सर। और किसी को अगर प्रॉब्लम है, ये समझ आना चाहिए यहाँ पे कि क्या क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि आप देखोगे और इसको ड्रॉ करोगे, देखोगे और वो करोगे तो समझ नहीं आया तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। जब एग्जाम में ड्रॉ करना शुरू करोगे फिर वो भूल जाएगा सब कुछ, लेकिन अगर समझ गए हो कि क्या हो रहा है बेसिकली एंड हाउ टू ड्रॉ इट, देन इट डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी। और किसी का क्वेश्चन हो गई? ठीक है, चलो नो नेक्स्ट अगर ये आपने ड्रॉ कर लिया, ये तो मैंने बताया था कि ये तो किया हुआ हमने, ये कैसे सभी रहेगा, साई 1 साई 2 साई 3 सेम उसमें बनेगा। ये वाले भी क्या बन रहा है उसको देख के हम लोग कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, उसको देख के हम लोग इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देन अबाउट द सिमेट्री एलिमेंट्स, अब सिमेट्री एलिमेंट्स रहेंगे इसमें, ठीक है। सिमेट्री है, Yes, sir. So जो sigma है, sigma 1, so is it having a mirror plane symmetry or not? Yes, sir. Symmetry. Yes, okay, so similarly, तो इसमें mirror plane symmetry है, so this one is symmetry, और pi 1 pi 1 में सुमन कुमार नाग, Symmetric, sir. so pi 1 is also having mirror plane Symmetric, sir. symmetry है, ठीक है। pi 2 में अगर देखोगे आप, it will be asymmetric, ठीक है। इसमें कोई symmetric में pi 3 star will be symmetric, pi 4 star will be asymmetric, and sigma star will be asymmetric, ठीक है। ये भी asymmetric आ रहा है, ठीक है। sigma star में इसमें mirror plane symmetry नहीं है। तो उसी तरह से if you see the C2 symmetry, C2 में this one is CSC, C is having C2 symmetry, this one is asymmetric, this one is negative and positive आएगा, so this one will be symmetric, and this one will be asymmetric, pi 3 star will be asymmetric, pi 4 star, so this will be symmetric, and sigma star will be asymmetric, ठीक है। so these are the C2 symmetry elements for the product, okay, C2, okay. So the next, okay, so next job is to see to draw the this correlation diagram. So through Cohen rotation, need to preserve the C2 symmetry. C2 symmetry preserve करेगा. So we are having psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, psi 5 and psi 6, ठीक है। So इसमें देख लीजिए आप, so this is asymmetric, symmetric, ठीक है। So ये रेक्टेंगल का आ गया। प्रोडक्ट में we are having sigma pi 1, pi 2, pi 3 star, pi 4 star and sigma star, okay। और इसके सिमेट्री एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। So this one is symmetric, sigma pi 1 is asymmetric, pi 2 is symmetric, pi 3 star is asymmetric, pi 4 star is symmetric, and sigma star is asymmetric, okay। So now, so rectangles and product, and then you can compare, so you can compare the symmetry elements, ठीक है। So psi 1 को sigma अगर करेंगे हम लोग, तो इस केस में
So we know that these are the ground state orbitals, psi1, psi2, psi3, or psi4, psi5, and psi6 excited state. So A psi1 is asymmetric and sigma is asymmetric, so this will not correlate. So this will correlate with the pi1. So sigma 1, A psi1 is correlating with the pi1. Similarly, this sigma will correlate with the psi2. Okay. Psi3 is asymmetric, so it will correlate with the pi3 star. Okay, and pi2 is symmetric, so it will correlate with the psi4. So psi4 के साथ. Similarly, psi5 will correlate with sigma star, and pi4 star will correlate with the psi6, because the symmetric orbitals, they will correlate with the symmetric, and asymmetric orbitals will correlate with the asymmetric orbital of a comparable energy. उनके आसपास की जो एनर्जी है तो नेक्स्ट के साथ या फिर नेक्स्ट हायर जो एनर्जी है उसमें कोरिलेट करेगा. ठीक है ना? So what are the conclusions? What do you say? What is happening in this case? So we call it psi1, psi2, psi3, and psi4. Okay. So this is having 2, 2, 1, and 1. So E is correlating with the sigma, pi1, pi2, and pi3 star. Okay. So these are the orbital of the reactants. Orbital, and these are the orbital of the products. Okay. So and here we can see. So this psi3 is the ground state orbital. So ground state orbital of the reactant is correlating with the pi3 star. So this is the first excited state of the product. Okay. So if ground state is correlating with the first excited state, then the transition will be संकलन नाइक. क्या होगा? संकलन. What will happen? So it will be a photochemically allowed and thermally forbidden. So photochemically allowed आएगी और thermally forbidden होगा, क्योंकि excited state reactant की correlate कर रही है प्रोडक्ट की ग्राउंड स्टेट के साथ, और रिएक्टेंट की ग्राउंड स्टेट correlate कर रही है प्रोडक्ट की एक्साइटेड स्टेट के साथ. ठीक है. सो दिस वन आप अगर यहाँ पे आ जाते हो आप, सो 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. यहाँ पे जब आप कॉन रोटेशन कर रहे हो तो कॉन रोटेशन में डायरेक्शन विल बी फिजिबल ओनली थ्रू द फोटोकेमिकल कंडीशंस. ठीक है. तो ये यहाँ पे फिर से वो प्रूव हो गया. ठीक है. सिमिलरली you can have, so you can have these when you are doing a disrotation. अगर आप disrotation से करोगे so disrotation में so mirror plane symmetry will be conserved, and if you see mirror plane में, so this one is symmetric, symmetric, asymmetric, symmetric, asymmetric, symmetric, and asymmetric. So these are the reactants. और product में so mirror plane symmetry. So this one is symmetric, then next one is again symmetric, this is asymmetric. So pi3 star is symmetric, symmetric, asymmetric, and asymmetric. Okay. So these are the orbitals in mirror plane symmetry. Okay, mirror plane में. So again here you can see correlation. Sigma psi1 will correlate with sigma, then psi2 will correlate with the pi2, pi1 will correlate with the psi3, psi4 will correlate with the pi4 star, and pi3 star will correlate with psi5, and psi6 will correlate with sigma star. Okay, and these are the ground state orbitals. Okay, and now in this case, what's happening? So psi1, psi2, and psi3. So these are the ground state orbital of the reactants. ये तीनों ground state है. So they are correlating with the only ground state orbital of the pi1, pi2. So these are correlating with the ground state orbital of the product only. Okay, so when
the ground state orbitals correlate with the ground state orbital of the product, then so that transition will be a thermally allowed and photochemically forbidden. So this is a thermally allowed and a photochemically forbidden transition. ठीक है? So this is about this correlation diagrams. और इसमें अभी कोई क्वेश्चन है, so let me know if you have any questions, or maybe go through it, and if you have any doubt or any questions, then maybe we can discuss in the next class. हेलो सर। सर कॉर्न रोटेशन कंसीडर कर रहे हैं तब हम लोग क्यों सर C2 एक्सिस का सिमेट्री एसिमेट्री देख रहे हैं? हाँ, और वाइस वर्सा के मतलब जो जब डिस रोटेशन देख रहे हैं तो अब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं सर, ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों देख रहे हैं? हाँ, ऐसा इसलिए कि हमने देखा ना कि वो कंजर्व होती है ना जो सिमेट्री एलिमेंट्स है, तो वो इसलिए देख रहे हैं। तो कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि ये दिस इज ऑर्बिटल, ठीक है, ये हमारा ऑर्बिटल है, सो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। तो अब अगर इसमें हम डिसरोटेशन करेंगे, ठीक है, डिसरोटेशन करेंगे, सो हम दोनों को एक साइड में घुमा रहे हैं, इसको कंजर्व होता है कैसा इसमें, जब मतलब ऐसा कुछ जो रिएक्टेंट की सिमेट्री है वो हमेशा कंजर्व वो रहेगी, वो कंजर्व रहेगी। रिएक्टेंट की सिमेट्री प्रोडक्ट में कंजर्व होगी, ठीक है, वो रहेगी। तो मैं बोल रहा हूं जैसे डिसरोटेशन कर रहे हैं, सो डिसरोटेशन में इसमें देखो आप कौन सा सिमेट्री एलिमेंट्स है, मिरर प्लेन है, यस सर, यस, इसमें मिरर प्लेन है, C2 है, यस, इसमें C2 भी है, ठीक है, दोनों C2 है। जब हमने डिसरोटेशन किया, डिसरोटेशन में अगर हम देखेंगे मिरर इमेज से कंजर्व हो रहा है, आप कौन सा सिर्फ मिरर प्लेन से कंजर्व होगा डिसरोटेशन में। जब कॉर्न रोटेशन करेंगे तब तो C2 कंजर्व होगा। हां, तो इस तरह से जब आप कॉर्न रोटेशन करोगे तो कॉर्न रोटेशन में जब आपके पास ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, सो यू हैव दिस इज प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, ठीक है। सो इन दिस केस नाउ द मिरर दिस इज नॉट हैविंग ए मिरर प्लेन सिमेट्री, नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ C2 कंजर्व हो रहा है, C2। तो ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है, ठीक है, सो देयर आर हाईली जो हमने उस दिन वुड और हॉफमैन रूल्स भी किए थे, सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशंस और सिमेट्री रूल्स। सो इट्स ओनली दिस सिमेट्री व्हिच इज प्लेइंग ए मेजर रोल, ठीक है, रिएक्शंस में कि क्या रिएक्टेंट्स की सिमेट्री ट्रांसफर हो रही है, क्या सिमेट्रिक ऑर्बिटल आपस में फेस कर रहे हैं। अगर सिमेट्री कर रहे हैं सो दैट विल बी ए सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन। अगर सेम सिमेट्रिक ऑर्बिटल फेस कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं then that will be symmetry forbidden. So whole this process is going on only on the symmetry of these orbitals, ठीक है। तो डिसरोटेशन में जब हम घुमाएंगे तो नेचुरल है कि जो सेम लोब्स हैं वो साइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पॉजिटिव जाएंगे, उसमें हमेशा मिरर प्लेन सिमेट्री कंजर्व होगी। और C2 में वो अपोजिट लोब्स आ रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं, तो उसमें 180 का रोटेशन करेंगे तब जाके वो कंजर्व होगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, क्या क्वेश्चन है? इफ हाईएस्ट occupied molecular orbital is odd disrotation even conrotation। अच्छा ठीक है, नहीं हाईएस्ट occupied नहीं बोल रहे हैं हम लोग तो बोल रहे हैं ये जो ऑर्बिटल्स है, ये जो ऑर्बिटल हम psi1 psi2 psi3 बोल रहे थे। जैसे psi1 है, psi1 में सारे के सारे हमें पता है पूरे पॉजिटिव ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो वो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, तो या और मिले तो जब आपके आमने सामने वाले ऑर्बिटल्स ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये अगर इसमें मिरर प्लेन सिमेट्री है तो मिरर प्लेन सिमेट्री तो ये सिर्फ डिसरोटेशन में बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल psi2 ये psi3 है, हमें पता है psi1 में ये दोनों मिरर प्लेन सिमेट्री होगी, psi2 में C2 सिमेट्री होगी। सो C2 सिमेट्री मींस ये आपस में एक दूसरे को फेस करेंगे, ठीक है। तो जब अपोजिट लोब फेस कर रहे हैं तो कॉर्न रोटेशन से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये जब इनका कॉर्न रोटेशन होगा ओनली देन द ऑर्बिटल विद सिमिलर सिमेट्री पॉजिटिव पॉजिटिव को फेस करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को फेस करेगा, वो सिर्फ कॉर्न रोटेशन में पॉसिबल है। डिसरोटेशन में अपोजिट सिमेट्री के आ जाएंगे,
तो वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो even my counter-rotatory. So yeah, here someone you can do it. So ये आपको सिर्फ जब आप समझ लो कॉन्सेप्ट को, जब आप समझ गए, so these are only tricks for you people. कि ऐसा नहीं कि आप पूरा psi1, psi2, psi3, psi4 और psi6 फिर ड्रॉ करने लगोगे फिर देखोगे, because you are not going to get this kind of questions. आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपके पास कोई लंबा सा डायग्राम होगा, वो आपको सिस्टम आइडेंटिफाई करने पड़ेगा वेदर इट इज ए 4n pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ये ट्रांस से बनेगा या सिस बनेगा इसमें, सो दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, सो